Hello students, today in this lecture I will discuss the concept of drift velocity of the electrons. Okay. Now since in the last lecture I had discussed the concept of current with you. Okay. Now since when no potential difference is applied across the conductor, then since no current flows through the conductor. First thing. Okay. The second thing, inside the conductor there exists the free electrons and the vibrating cations. The positions of the vibrating cations say are fixed in the crystal lattice. Got it? Third thing, when no potential difference is applied across the conductor, then since electrons they are in a state of random motion and the net crossing of the electrons at any hypothetical cross section area is zero. Okay, students? So first of all, the condition when no current flows through the conductor. Okay, now when no potential difference is applied across the conductor, now since we are going to discuss this topic in two parts. It is the first part. Copy it and underline it. Done? Now take a look. Let us suppose say the copper wire, that is a conductor, and inside the conductor I had already told you that there exists the cations which vibrates about their fixed positions and the electrons they are in a state of random motion. Let us suppose say that it is the end A and it is say the end B. Let us suppose say it is the electron. This electron is in a state of random motion. So when it is in a state of random motion, then it will collide with these vibrating cations. Okay, and as a result of which the net crossing of every free electron in a similar way at any hypothetical cross section area is zero. Got it, sense? So I am making a dictation. Note it down. Okay, first of all you have to copy this figure. Copy this figure. Copied? Now start. When no potential difference is applied across the conductor, when no potential difference is applied across the conductor, the cations vibrates about their fixed positions and the free electrons are in a state of random motion. Full stop. During the random motion, the free electrons collides with the vibrating cations in a random manner. Full stop. Due to which the net crossing of the free electrons
at any hypothetical cross section area of the conductor is 0 and no current flows through the conductor. Full stop. In the next line, let vector u1 comma vector u2 comma dot 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 up to vector un. Let vector u1 comma vector u2 comma dot 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 up to vector un be the thermal velocities of the free electrons inside the conductor. Full stop. Let UAV, ऐसे लिखना है, let UAV be the average thermal velocity of every free electron inside the conductor. Then thus UAV is written as say U1 vector plus say U2 vector plus say dot 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 up to UN vector divided by small n. Copy it. Where small n is the total number of the free electrons inside the conductor. Full stop. In the next line, अब बेटा next line में लिखना, when no potential difference is applied across the conductor, the average thermal velocity of every free electron inside the conductor is 0. Due to which we can say that no current flows through the conductor. Full stop. अब मेरी बात ध्यान से सुने बेटा, ये जो अंडरलाइन किया है उसके बाद से और लास्ट पॉइंट जो लिखवाया है उससे पहले तक ये जो पूरा भाषण था, इस पूरे भाषण को हमने नट शेल में लिखा है. बात समझ आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है तो नेट क्रॉसिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स का 0 है हर क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो बोलेंगे कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है एज पर डेफिनेशन ऑफ करंट. समझ आ गई बात? ओके. अब एक काम करें, दोबारा हेडिंग डालें, when some potential difference is applied across the conductor. हेडिंग डालिए, अंडरलाइन करिए. हेडिंग डालिए, अंडरलाइन करिए. सो इसके दो फिगर बनाने हैं, दो फिगर. पहला ये फिगर बनाए. अब इसका मैग्नीफाइड व्यू ध्यान से देखिए. इधर वाले एंड को ए लिख लें, इधर वाले एंड को बी लिख लें. से ए से बी
अब देखिए ये वाला फिगर बनाए, अब ध्यान से देखिए, पेरेंट फिगर में circuit is closed, the plug is inserted in the key K, V is the applied potential difference with the help of the battery. Now some current flows through the circuit, okay, and the reading in the milliammeter, it will be the value of the current which is flowing through the conducting wire. Okay, now as I had already discussed with you in the last lecture, that on the account of this applied potential difference, there will exist the electric field inside the conductor, and this applied electric field, now it will exert the electric force on every free electron, and its direction is opposite to the direction of the electric field. First thing is clear? Got it? Now as the electrons, they were in a state of random motion. The same picture again I had drawn. Again I had considered all those three cations, the vibrating cations, and the collision of a free electron with these vibrating cations. Now when this electron, this free electron, it collides with this first cation, then it will collide with the second cation, then it will collide with this third cation. Now in the last picture, this electron was bouncing back from this third cation towards the first cation. Now what will happen? As all the free electrons, they are experiencing the electric force, say vector F, which is in the direction opposite to that of the electric field. So since it is not possible of the electron when it is colliding with this third cation to bounce towards this first cation. So what will happen? On the account of this electric force, when the electron is colliding with this third cation, then after collision it will get drift. Drift का मतलब हिंदी में सरकना, ठीक है, और it will move in the forward direction, that is towards the end A. Clear? Now when it happens, then take a clear look. Let us suppose say that it is, say, the hypothetical cross section area, and at this hypothetical cross section area, as this electron, the first electron, say the free electron, is crossing the hypothetical cross section area towards the end A, the same story will hold for all the free electrons which exist inside the conductor, okay, and they will also cross the hypothetical cross section area towards the end A, due to which there is some net crossing of free electrons at the hypothetical cross section area, that is some charge per unit time, some charge per unit time in the form of electrons is drifting. I am using the word drifting, हिंदी में बोलते हैं बेटा सरकना. अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैटायंस के साथ कोलाइड भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रैंडम मोशन में था पहले, कोलाइड भी कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से एंड ए की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है. समझ आ गई बात? क्लियर? अब एक काम करें, ये हेडिंग आपने कॉपी कर लिया, ये फर्स्ट फिगर, उसके बाद ये सेकंड फिगर आपने कॉपी कर लिया. इधर वाले एंड को पॉजिटिव पोटेंशियल मार्क कर लें, इधर वाले एंड को नेगेटिव पोटेंशियल मार्क कर लें, ठीक है. तो होता क्या है, स्टूडेंट्स, जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पहले रैंडम मोशन में हुआ करते थे, अब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैटायंस के साथ कोलाइड करते हुए एंड ए की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे. क्लियर? बात समझ आ गई? ओके. अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स जिस एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द एंड ए, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. पल्ले पड़ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं कुछ डिक्टेशन दे रहा हूं, नोट कर लें आप उसको. ये फिगर्स कॉपी हो गए हैं, कॉपी करने के बाद कॉपी करना मतलब लिखना. लिखिए, when some potential difference is applied across the conductor,
then on the account of the applied potential difference, there exists the electric field inside the conductor, and this electric field exerts electric force on all the free electrons in a direction opposite to it. Full stop. The electrons which were in a state of random motion, they, on the account of the electric force, drift towards the end at higher potential while colliding with the vibrating cations in between. ओके, फुल स्टॉप डाल लें. नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट वेक्टर E कैपिटल E be the electric field inside the conductor and vector F be the force experienced by all the free electrons. Now ध्यान से देखिए, this vector F is written as F is equals to QE. Direction opposite था, E is the charge on the electron, capital E is the electric field inside the conductor, and on the accounts of Newton's second law of motion, according to Newton's second law of motion, this vector F is equals to ma. What is m? नोट कर ले साथ में, m is the mass of every free electron and vector A is the acceleration produced in every free electron due to the electric force. This implies that this ma vector is written as negative of E into vector E. This vector A is written as negative of E into say vector E divided by m. बात समझ आ गई? So students, it is the acceleration produced in every free electron. Okay? Clear? नेक्स्ट लाइन में पहले यहां तक कॉपी करें, यहां तक कॉपी करने के बाद एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसे लिख लें. द अबव इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एवरी फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर. बात समझ आ गई? अब क्या होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात. अब क्या होगा बेटा, अब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में आ गया एक्सेलरेशन. अब बेटा इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी थी, अब एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन पहले कैटायन या कोई भी दो कैटायंस के बीच में जब डिस्टेंस कवर करेगा तो बेटा एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी. बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट ऐसे लिखें, लेट वेक्टर v1 कॉमा वेक्टर v2 कॉमा डॉट 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 अप टू वेक्टर vn be the velocities attained by
the different free electrons between the two successive collisions with the vibrating cations while drifting from the end at lower potential towards the end at higher potential। ठीक है बेटा, तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करिए, देखिए दोबारा से देखिए, दोबारा से फिगर देख लें। ये एंड ए था, ये एंड बी था, यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल था, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल था, ये कैटायन था, ये कैटायन था और फिर ये कैटायन था। तो बेटा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कैटायन के साथ जब कोलाइड कर रहा है, हम यहां पर टाइम t इक्वल टू 0 मार्क करेंगे। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन सेकंड कैटायन के साथ कोलाइड कर रहा है तो हम यहां पर टाइम से टॉ मार्क करेंगे। बेटा इस टॉ को बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे इसको? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन ने, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने दो सक्सेसिव कोलिजन का मतलब एक के बाद एक। तो पहला कोलिजन यहां पर इस कैटायन के साथ हुआ है, दूसरा कोलिजन इस वाले कैटायन के साथ हुआ है। ठीक है, अब दोनों वाइब्रेटिंग कैटायंस के बीच में इलेक्ट्रॉन ने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा था फोर्स की वजह से था एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा। क्लियर हो गई बात? तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब बेटा इस कैटायन से कोलाइड करने के बाद जब स्टार्ट हुआ था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u1 था, और जब इस वाले कैटायन तक पहुंचा तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होकर या चेंज होकर वेक्टर v1 हो गया था। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर है? तो बेटा ये जो टाइम स्पेंट हुआ बिटवीन दीज टू सक्सेसिव कोलिजन्स, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको? रिलैक्सेशन टाइम। समझ आ गई बात? एक काम करें, नेक्स्ट लाइन में इनकी वैल्यूज लिखें। दिस वेक्टर v1 is written as a vector u1 plus a vector a into tau1। टाइम को t से डिनोट नहीं कर रहे हैं, tau से डिनोट कर रहे हैं, tau1 लिखें। ठीक है, वेक्टर v2 is written as a vector u2 plus a vector a into tau2। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा। हर इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। वेक्टर vn is written as a vector un plus a vector a multiplied with tau n। समझ आ गई बात? ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट लाइन में लिखें वेयर यहां तक कॉपी करने के बाद लिखें वेयर tau1 tau2 dot 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 up to tau n is the time spent by the different free electrons between the two successive collisions with the vibrating cations while drifting from the end at lower potential towards the end at higher potential। full stop। चलिए full stop मत डालिए। and this time spent by every free electron is called relaxation time। बेटा रिलैक्स होने वाला, रिलैक्सेशन टाइम। समझ आ गई बात? ओके, चलिए अब आगे।
अब नेक्स्ट लाइन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखिए, अंडरलाइन करिए, मैं डेफिनेशन दे रहा हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख करके अंडरलाइन करें। ये कॉपी कर ले पहले, ये कॉपी करने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखे, अंडरलाइन करें। लिखे बेटा डेफिनेशन दे रहा हूं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज दैट एवरेज वेलोसिटी The drift velocity can be defined as that average velocity with which every free electron drifts from the end at lower potential towards the end at higher potential when some potential difference is applied across the conductor or some current flows through the conductor next line में अब लिखें let vector vd, ऐसे लिखें let vector vd be the drift velocity of every free electron। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन में स्टार्टिंग में हमने वर्ड यूज किया एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो वेलोसिटीज अटेन हुई हैं, जो वेलोसिटीज एट द एंड ऑफ सेकेंड सक्सेसिव कोलिजन, या जो वेलोसिटीज इलेक्ट्रॉन ने या इलेक्ट्रॉन्स ने, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने अटेन की हैं बिफोर द सेकेंड सक्सेसिव कोलिजन, क्लियर, उन सभी का एवरेज लेना है। बात समझ आ गई? सो दिस वेक्टर vd इज रिटन एज वेक्टर v1 प्लस से वेक्टर v2 प्लस से डॉट 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 अप टू वेक्टर vn होल डिवाइडेड बाय स्मॉल n, होल डिवाइडेड बाय स्मॉल n। समझ आ गई बात? अब ये वैल्यूज डाल दें सारी। सो दिस वेक्टर vd इज रिटन एज v1 का वैल्यू लगाएंगे तो वेक्टर u1 प्लस से वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय टॉ 1 प्लस वेक्टर u2 प्लस से वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय टॉ 2 प्लस डॉट 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 अप टू वेक्टर un प्लस से वेक्टर a मल्टीप्लाइड विद टॉ n होल डिवाइडेड बाय स्मॉल n। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, ठीक है ना बेटा, सारा u एक साइड पे कर ले। वेक्टर vd इज रिटन एज वेक्टर u1 प्लस से वेक्टर u2 प्लस से डॉट 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 अप टू वेक्टर un डिवाइडेड बाय से स्मॉल n। बात समझ आई? ओके, इसके बाद प्लस वेक्टर a को कॉमन रखें, टॉ 1 प्लस से टॉ 2 प्लस से डॉट 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 अप टू टॉ n होल डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ये बात समझ आ गई? क्लियर हो गई बात? ओके, स्टूडेंट्स, हमने बेटा ये जो हमने हेडिंग डाली है, हेडिंग से पहले ये जो एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, एक बारी चेक कर लो क्या हमने वहां पर ये लिखा था, ये जो एक्सप्रेशन है इसके आगे इक्वल टू 0 डाला था? अगर नहीं डाला था तो इक्वल टू 0 लगा लें वहां पे, इक्वल टू 0 लगा लें वहां पे, ठीक है? इस हेडिंग से पहले ये एवरेज वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था उसके सामने इक्वल टू 0 डालें, अगर हमने नहीं डाला था, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि डाला था या नहीं डाला था। अगर नहीं डाला था डाल लें, ठीक है? डिस्कस कर लिया था कि जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था,
और आज वाले लेक्चर में स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर लिया था, जब करंट फ्लो नहीं करता तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटीज का जब हम एवरेज लेते हैं तो ये जीरो होता है। बात समझ आ गई? ओके, वहां पर ध्यान से सुने, वहां पर इक्वल टू जीरो डाल लें। हो गया नया? अब ध्यान से देखिए, सिंस the average velocity was vector u1 plus say vector u2 plus say dot 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 up to vector un whole divided by small n, and this average velocity it was zero, तो ये जो average velocity है ये यहां पर डालेंगे हम। So this implies that this vector vd is written as, ये तो पार्ट हो गया जीरो, वेक्टर a whole multiplied with tau 1 plus say tau 2 plus say dot 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 up to tau n whole divided by small n। समझ आ गई बात? इतना काम क्लियर हो गया? अब बेटा ये देखिए, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सारे रिलैक्सेशन टाइम का हमने लिया एवरेज, तो इसको बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। पल्ले पड़ी बात? नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट लेट टॉ, एक सेकेंड रुकिए, लेट टॉ बी द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, let tau be the average relaxation time। So this vector vd is written as say vector a multiplied with tau। बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट लाइन में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिखिए, अंडरलाइन करिए, इसकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लिखिए, अंडरलाइन करिए, इसकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैं डिफाइन कर रहा हूं, नोट करें। द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज टाइम स्पेंट बाय एवरी ड्रिफ्टिंग free electron from the end at lower potential towards the higher potential when some potential difference is applied। एक सेकंड रुकिए, शायद स्टूडेंट्स कुछ मिस हो गया, एक बारी काट दें, दोबारा लिखवा रहा हूं, दोबारा लिखवा रहा हूं, कुछ मिस हो गया। एक काम करिए, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, आप वहां से कॉपी कर लें, क्योंकि डिक्टेशन के टाइम में कुछ मिस हो जाता है तो फिर वो याद करना मुश्किल हो जाता है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सो इसका डेफिनेशन, it can be defined as the average time spent by every free electron between the two successive collision between the two successive collisions with the vibrating cations when some
potential difference is applied across the conductor or some current flows when some current flows through the conductor. Copy करें. It can be defined as the average time spent by every free electron between the two successive collisions with the vibrating cations when some potential difference is applied across the conductor or some current flows through it. Okay? Copy करिए. Done? हाँ जी, हो गया. अब ध्यान से देखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सेलरेशन का वैल्यू लगाएंगे. नाउ दिस वेक्टर vd इज रिटन एज नेगेटिव ऑफ e इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय स्मॉल n मल्टीप्लाइड विथ tau. So since it is the required expression for the drift velocity of the free electrons with which they drifts when current flows through the conductor. समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. यहां तक काम खत्म हो गया. ठीक है, ये एडिशनल है. एडिशनल क्या लिखना? इन मैग्नीट्यूड Vd is equals to 10 raised to power minus 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बेटा, बहुत कम स्पीड होती है ये. 10 raised to power minus 5 मीटर पर सेकेंड बहुत कम स्पीड होती है. अब जरा सोचिए कि बेटा जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घरों में अवेलेबल हैं, अब जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस काम करना स्टार्ट करती है. अब सोचिए, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड इतना कम है, तो अगर स्विच आज दबाया है आपने, आज स्विच चालू किया है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस को या इलेक्ट्रिक अप्लायंस तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में थ्रू द वायर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थ्रू द वायर कनेक्टेड है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए था. पता लगा जी आज दबाया है, कम से कम 6 महीने लगने चाहिए थे. 6 महीने बाद इलेक्ट्रिक अप्लायंस चालू होती. लेकिन हम देखते हैं कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिक अप्लायंस काम करती है. अब बेटा अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इतना कम होता है, तो स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्यों काम करती है? इसका आंसर आप मुझे देंगे. समझ आ गई बात? अपनी बुक्स में देखिए, प्रदीप्स में जाइए, रीड करिए, समझिए, और समझने के बाद थोड़ी अकल लगाइए, उसके बाद आंसर दीजिए. ये इंपॉर्टेंट 1 मार्कर है. पल्ले पड़ गई बात? ओके, चलिए सर, हेडिंग डालिए. हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये वाला फिगर कॉपी करें. ध्यान से देखिए बेटा,
कंडक्टिंग वायर का लेंथ है स्मॉल l और कैपिटल A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टिंग वायर का। V is the applied potential difference, V is the applied potential difference, और applied potential difference की वजह से कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस करने वाला था। ठीक है, ये वाला फिगर जल्दी से कॉपी करिए। यहां पर सर्किट क्लोज है तो जो करंट फ्लो करेगा उसे हमने ऐसे मार्क किया, दैट इज I। ये जो हम करंट वायर के अंदर मार्क करते हैं इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेंशनल करंट। बैटरी के पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ये जो वायर है इसको एक्सटर्नल सर्किट बोलेंगे। ठीक है, जो कन्वेंशनल करंट है हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट मार्क किया जाता है। क्लियर? समझ आ गई बात? चलिए कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद लिखें कंसीडर a wire of length L and area of cross section capital A connected with a battery full stop. Let I, capital I, be the current flowing through the wire. Let capital I be the current flowing through the wire, and by definition of current, बेटा करंट का डेफिनेशन I is equals to Q by T। तो Q क्या हो गया? Q is the charge flowing through the wire per unit time। क्लियर? तो यहां पे मैंने Q और T मार्क कर दिया है, तो मैं Q को बोलूंगा Q is the charge in the form of electrons which is flowing from the end at the lower potential towards the end at the higher potential। बात समझ आ गई? And T is the time interval। Got it? नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखें, इसे पहले कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखें लेट कैपिटल N लिखना है। लेट कैपिटल N be the total number of free electrons inside the wire, and small n be the number density of the free electrons inside the conductor। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वायर के अंदर। अब Q टोटल चार्ज है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, सो दिस Q इट विल बी इक्वल्स टू N मल्टीप्लाइड विद स्मॉल e। क्वांटाइजेशन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? क्वांटाइजेशन। अब ध्यान से देखिए, स्मॉल n नंबर डेंसिटी है ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, सो इट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स divided by the volume of the conductor। total number of the free electrons divided by the volume of the conductor। volume of the conductor is, कंडक्टर सिलेंड्रिकल वायर है, पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया पाई आर स्क्वायर और एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। समझ आ गई बात? सो दिस कैपिटल N is written as say small n multiplied with A multiplied with L। अब ये कैपिटल N का वैल्यू यहां पर लगा दें। Now this Q is written as small n multiplied with A multiplied with L multiplied with small e। So friends, it is the total charge which will exist in the form of electrons inside the conducting wire। अब बेटा ये जो टोटल चार्ज है ये फ्लो करेगा वायर के अंदर। क्लियर? कितने टाइम के अंदर फ्लो कर रहा है? स्मॉल t टाइम के अंदर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट लाइन में लिखें, बाय डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी था, सो इट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बाय डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd is written as the distance covered by the total charge on every free electron, it will be equal to the length। So distance divided by time। समझ आ गई बात? Now this time t is written as say L by Vd। तो बेटा ये टाइम का वैल्यू हो गया, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। नेक्स्ट लाइन में लिख लें, यहां तक कॉपी करने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिख लें where Vd is the drift velocity of the free electrons।
अब ये Q और ये T दोनों की वैल्यूज यहां पे डालेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज यहां पर लगाने के बाद आपको मिलता है दिस I is written as स्मॉल n इंटू से A इंटू से L इंटू से E डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय VD। समझ आ गई बात? Now this L and this L they are cancelled out, so this I is written as N E capital A VD. So since it is the required relationship between the current and the drift velocity, और ये न्यूमेरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बेटा प्रदीप खोलना, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स देखना, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखना, वहां पे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में रीजनिंग एग्जिस्ट कर रही है, तो उस रीजनिंग की प्रैक्टिस आज ही कर लेना, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना। सो स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ इतना करने वाले हैं। The remaining section will be discussed in the next lecture. Got it? Okay.